Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. So, stay at your home, be safe and be healthy. Yes, dear students, me Manpit Kaur, your geography teacher from California Public School. Yes, students, in the previous videos, we have to discuss about our first chapter of 7th class. That's name is Representation of Geographical Features. Today, date is 6th May 2020 and we have to start our next chapter whose name is the Atmosphere. So, students, what's first question arise? What is atmosphere? What is a atmosphere? Simple definition of atmosphere is atmosphere means blanket of air surrounding us. Blanket of air surrounding us, that is known as the atmosphere. So, the vast blanket of air which is surrounding the earth is known as the atmosphere. इसे हम क्या कहते हैं? Atmosphere. It is roughly estimated that the upper limit of the atmosphere reaches up to the height of about 10,000 kilometers from the surface of the earth. मीन्स इसकी हाइट कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर की अर्थ सरफेस से? नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर. सो द टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन मेट्रिक टन्स. इतना इसका हम वेट लगा सकते हैं. सो वाई द एटमॉस्फेयर हेल्ड क्लोज टू द अर्थ? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स due to which all the things are stable on the earth. So, due to the force of gravity, it also attracts the gases towards the earth. So, that is also the means helpful for the atmosphere. About 50% of the total mass of the air is found within 5 kilometer from the earth surface. 5 किलोमीटर अर्थ सरफेस में हमें 50% गैसेस मिल जाती हैं. It exists in several layers around the earth. अर्थ के आसपास इसकी काफ़ी लेयर्स हैं. सो जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीजेज हो जाती है एज वी गोज़ हायर लैटिट्यूड्स. हायर अल्टीट्यूड्स के ऊपर हम चलते जाएंगे तो उसके जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी. सो उसके लिए हमें इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रीथ. हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अच्छी तरह से सांस लेना. So, atmosphere protects us from the harmful effects of the sun rays. हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है जो अर्थ सन की हार्मफुल रेज आती हैं. लाइफ है जो अर्थ की वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड है. एटमॉस्फेयर के पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है जो दोनों हमारे लिए, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए और ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द वार्मथ ऑफ द अर्थ. अर्थ को गर्म करने के लिए भी हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है. इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स की सर्कुलेशन के लिए. विदाउट दिस वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर हम वी वुड बी बेक्ड, हम जिंदा बेक्ड होते बाय द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के टाइम में पूरे बेक्ड हो जाते और रात के टाइम में पूरे फ्रीज्ड हो जाते, फ्रोज़न. द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हैज़ मेड इट अ यूनिक प्लैनेट. जो एयर है हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसके कारण ही हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कह सकते हैं, सबसे अलग. As the temperature of the earth is suitable for the growth of life. So next is composition of atmosphere. Atmosphere किस किस चीज़ का बना हुआ है? Firstly, atmosphere is a mixture of many gases, dust particles, smoke and water vapors. Atmosphere is a mixture of many, इसमें काफ़ी gases हैं, dust particles हैं, smoke और water vapors are present. Composition is not fixed. Rather, it varies from place to place. जगह जगह पर अलग है. From season to season, it's also be change. In the lower layers, the composition of air, dry air is uniform. जो dry air है lower layers में वो uniform है, but upper layers में it will be change. So next,
Nitrogen and oxygen are the two main gases which account for 99% of the atmosphere. कहते टू गैसेज हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो 99% एटमॉस्फेयर को कवर करती हैं। जो 1% रह गया उसमें आ जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन। Apart from these gases, the atmosphere also has a varying quantities of dust particles and water vapors. कहते इन गैसेस के साथ उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं और वाटर वेपर्स भी। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? It is the most abundant gas and accounts for the 78% of the clean dry air. कहते 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एयर में। नाइट्रोजन a colorless insert gas dilutes the oxygen and slow down the process of oxidation. कहते ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ये स्लो करती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर कर। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, कहते प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए अपने ग्रोथ सर्वाइवल के लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए। दे कैन नॉट यूज इस डायरेक्टली एंड ऑब्टेन इट फ्रॉम द सॉइल, डायरेक्टली नहीं यूज़ करते बट थ्रू द सॉइल दे हैव टू टेक द नाइट्रोजन। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। यू ऑल नो वेरी वेल ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। Without oxygen, human being can't be live on the earth. Oxygen is the second most important gas in the atmosphere. Its share is about 21% of the clean dry air. कहते clean dry air का 21% present है हमारे in the atmosphere में। 78 nitrogen, 21 oxygen. So it is found only in the lower layers of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में डेट इज़ द प्रेजेंट। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड इट फॉर ब्रीदिंग पर्पस। कहते ब्रीदिंग सांस लेने के लिए सभी लिविंग बीइंग्स को इसकी ज़रूरत है। शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस plants produce oxygen and takes the carbon dioxide. So next one is our the carbon dioxide. Carbon dioxide is needed by the plants for their survival. Human beings and animals release carbon dioxide. This amount is equal to the amount consumed by the plants. However, the balance of carbon dioxide in the atmosphere is being disturbed by the increased burning of fossil fuels like coal and petroleum. कहते कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए, ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो ये अमाउंट जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम कर लेंगे, बट जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है। वी हैव टू कट द ट्रीज़ हम कट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। कहते टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है कि एयर में वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है। वाटर वेपर इज़ एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड है from the oceans, seas, lakes, rivers, etc. and transpirations from the vegetation, जो vegetation है उससे भी evaporation होती है, as well as from the respiration of the animals. Animals भी जब सांस respiratory होती है उनकी, that also the depends. Water vapor is responsible for the forms of condensation and precipitation. आगे वाटर वेपर है, कितना होता है, कंडेंस होता है, और उसके आगे प्रेसिपिटेशन की होती है, रेनफॉल, स्नोफॉल, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन. सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर आल्सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स, साल्ट पार्टिकल्स, पॉलन्स फ्रॉम द प्लांट्स, एश फ्रॉम द वोल्केनिक eruptions, smoke from fires, etc. These also the part of the atmosphere. They are found in the lower layers only.
कहते हैं ओनली लोअर लेयर्स में फाउंड होती हैं, नियर अबाउट ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर। दीज पार्टिकल्स एक्ट एज न्यूक्लियाई फॉर द वाटर वेपर्स टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स अराउंड दैम। कहते हैं वाटर वेपर्स के आसपास एक्ट करते हैं और वो रेन ड्रॉप्स बनने में उनकी हेल्प करते हैं। दे आल्सो स्कैटर इन द सन रेज रेडिएशन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। कहते सन रेडिएशंस के साथ भी ये टकराते हैं जब सूरज छिपता है और सूरज उगता है, सनराइज और द sunset. So yes dear students, in this video we have to discuss about the atmosphere and composition of atmosphere. Main two gases हैं nitrogen and the oxygen. Nitrogen 78%, oxygen 21%. So dear students, listen it carefully and understand it. So meet you the next video. Take care, be safe and be healthy.